জনপদ থেকে অলিগলি শিল্পাঞ্চলের সর্বত্র আমরা আছি সত্যের মুখোমুখি। শিল্পাঞ্চলের সেরা খবর, সেরা তথ্য, সেরা বিশ্লেষণ। ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। নমস্কার, শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়ে শুরু করছি আজকে ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। সঙ্গে আমি রুমকি। চলে যাবো সরাসরি বিস্তারিত খবরে। শুক্রবার আসানসোল পৌর নিগমের মহানাগরিক বিধান উপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল জুবলি মোড় সংলগ্ন এলাকা পরিদর্শনে যান। এদিন মহানাগরিক জানান, আসানসোল পৌর নিগমের পক্ষ থেকে NH2 তে একটি হাসপাতাল নির্মাণ করা হবে। সেই উদ্দেশ্যে এই এলাকা পরিদর্শন করা হয়। এই সাইডে ওই সাইডে তো বিবেকানন্দ পার্ক আছে না, করতে দেবে না। জুবলি মোড় গেছিলাম আমরা। রোটারি ক্লাব অফ আসানসোল একটা টয়লেট করতে চাইছে, কমিউনিটি টয়লেট করতে চাইছে, এবং ওটা আমরা অলরেডি প্রসেসে রেখেছিলাম। আমাদের জুবলি মোড়, কাল্লা মোড়, চরঙ্গি মোড়, নিঙ্গা মোড়, যেগুলো মোড়গুলো রয়েছে সেখানে প্রচুর মানুষের ভিড় হয়, সেখানে টয়লেট নেই। তো রোটারি ক্লাব আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব কাছে আবেদন করেছিলেন, জানিয়েছিলেন যে আমরা একটা করতে চাইছি। উনি আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। পাঠানোর পর আমরা জায়গাটা দেখে আমাকে গতকাল রাত্রে ফোন করেছিল, এবং আজ সকালে গিয়ে আমরা প্রেসটা দেখে তাদেরকে প্রেস দেখিয়ে দিয়েছি। হয়তো 2-4 দিনের মধ্যে কাজটা চালু করবে। তাছাড়া ওখানে একটা আমরা জুবলি মোড়ে আসানসোল কর্পোরেশন হসপিটাল, যে মানে খুব চিন্তাধারা রয়েছে, এবং সেটা প্রসেসও অলরেডি আমরা করেছি। আমরা জমির জন্য আড্ডাকে চিঠি দিয়েছিলাম। লাস্ট 3 দিন আগে আমাদের আড্ডার বোর্ড মিটিং হয়েছে, সেই বোর্ড মিটিংয়ে আমিও মেম্বার, এবং সেই বোর্ড মিটিংয়ে অলরেডি ওটা উঠার পর ওটাকে কিন্তু কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং মনে হয় আমরা খুব তাড়াতাড়ি জমিটা পেয়ে যাব। এবং ওই হসপিটালটা হলে, যেহেতু প্রাইভেট হসপিটালগুলো নিয়ে মানুষ মানে নাভিশ্বাস হয়ে উঠেছে। এখানে জেলা হাসপাতাল আমাদের রয়েছে, সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু এই জেলা হাসপাতালে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, আমাদের ঝাড়খণ্ড থেকে প্রচুর মানে ঢুকে যাচ্ছে, ফলে একটু অসুবিধা হচ্ছে। তো সেখানে যদি কর্পোরেশন আমরা চিন্তাধারা করেছি, পশ্চিমবঙ্গে মনে হয় না কোনো কোথাও কর্পোরেশন হসপিটাল আছে কিনা। তো আমরা যদি আসানসোল কর্পোরেশন করে দিতে পারি, তো মনে হয় এটা একটা ভালো আমরা কাজ করতে পারবো মানুষের জন্য, এবং খুব কম রেটে এটা করব। খুব কম রেটে এটাকে করা হবে। জমিটা আমরা ঠিক জুবলি মোড়ের সামনে, যেখানে মানে মানুষ বাসে করে, বাড়ির থেকে বাসে চেপে চলে এলে রাস্তাতে নেমে গেলে হসপিটালে ঢুকে যাবে, মানে কোনো অসুবিধা এখন জায়গাটা আমরা চেষ্টা করছি। জায়গাটা নেওয়ার পরে আমরা PPP মডেলটাকে চালু করে দেবো খুব তাড়াতাড়ি। বিশ্ব বাংলা গেটও আমরা করব। মানে যখন আমরা মানুষকে বলেছি যে আমরা বিশ্ব বাংলা গেট আসানসোলে দেবো, আমরা নিশ্চিতভাবে দেব। এবং এটা একটু আমাদের কলকাতায় আমরা ভেটিং এর জন্য পাঠিয়েছি, এখন পর্যন্ত আমাদের ভেটিং এ আসেনি। ওটা ভেটিং হয়ে এলে তারপর আমরা ফাইন্যান্সিয়াল একটু দেখে আমরা ওটা চালু করবো, এবং ওটা আসানসোলের মানে সুন্দর একটা জিনিস হবে। আসানসোলকে দারুণ লাগবে দেখতে ওটা। ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। একটি ছোট্ট বিরতি। राधानगर जीसस एंड मेरी चर्च द्वारा संचालित जीसस एंड मेरी चर्च स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली को एजुकेशन, जहां उच्च शिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों को उच्च ज्ञान प्रदान किया जाता है। वी हैव हाई क्वालिटी कंप्यूटर लैब, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी अवेलेबल हियर। साथ ही ज्ञान के अलावा डांस, स्पोर्ट, गेम की ट्रेनिंग भी दी जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इज आल्सो अवेलेबल for commuting. So enroll yourself today for the all-round development of your children. सीजन 2024-25 के लिए नामांकन जारी है। Contact us today. Jesus and Mary Church School, राधानगर नियर काली मंदिर, सुंदरचक। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 6294897015 नंबर पर।
আসানসোল ও শিল্পাঞ্চলবাসীদের কাছে সুখবর নিয়ে এলো হামজা ফ্যাশন। হামজা ফ্যাশন, এখানে আপনি পাবেন মহিলাদের জন্য অত্যাধুনিক সাজ পোশাক, আছে কুর্তি, লেহেঙ্গা, শাড়ি, স্যুট, নকাব ইত্যাদি। আমাদের ঠিকানা আসানসোল জিটি রোড, ইস্টার্ন রেলওয়ে হাই স্কুলের বিপরীতে। তাহলে আর দেরি কেন, এবার পুজোতে আপনারা সবাই চলে আসুন হামজা ফ্যাশনে। ন্যায্য দামে নিয়ে যান আপনার পছন্দ মতো জিনিস। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसुसोर नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। এলাম বিরতির পর। শনিবার আসানসোল রেল ডিভিশনের পক্ষ থেকে রেলের কনফারেন্স হলে ডিআরএম চেতনানন্দ সিং এর উপস্থিতিতে এক সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। বসে যান দাদা, লেটস এদিনে সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে তিনি জানান, 26শে ফেব্রুয়ারি আসানসোল ডিভিশন অন্তর্গত 15টি স্টেশনে সৌন্দর্যকরণ করার কাজের শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রনাথ মোদী। সেই বিষয়টি সাধারণ মানুষকে জানানোর উদ্দেশ্যে এই প্রেস কনফারেন্স করা হয়। আরো কি কি বলেছেন এই কনফারেন্সে আমরা শুনে নেব। अच्छा, थोड़ा एक रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सामने से थोड़ा आप लोग को बढ़िया से उसका ले जाएगा। इसका नेक्स्ट स्लाइड करो। नेक्स्ट तो पीछे चल रहा है अभी एक एक स्टेशन के बारे में जो फैसिलिटीज एग्जिस्टिंग है और क्या क्या प्रपोज फैसिलिटीज है उसके बारे में बताएंगे। जैसे बासुकीनाथ स्टेशन আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কি আপনি আজকে এই স্যাটারডে দিন আপনি এত শর্ট নোটিস করে উপস্থিত হয়েছেন। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর কামিং ফর দিস প্রেস कॉन्फ्रेंस। जो आज का मुख्य विषय है, माननीय प्रधानमंत्री जी 26 फरवरी को 508 स्टेशंस का शिलान्यास रखेंगे और 1500 LHS ROBs का शिलान्यास या डेडिकेशन। तो ये काम भारतवर्ष में होगा और हमारे डिवीजन में 7 स्टेशंस और 11 LHS का शिलान्यास रखा जाएगा। जो अमृत भारत का टोटल काम है, आप इस बात से समझ सकते हैं कि पहले डिवीजन में हम लोग स्टेशंस का जो मेंटेनेंस करते थे उसमें करीब 30-35 करोड़ रुपया खर्च होता था, और आज की डेट में अमृत भारत में हम 200 करोड़ 15 स्टेशन पे खर्च कर रहे हैं, लगभग फिगर बता रहा हूं, और 400 करोड़ आसनसोल स्टेशन पे खर्च कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये अमृत भारत और रीडेवलपमेंट स्टेशन का अगर पैसे की सिर्फ बात करें तो उसका विजन कितना बड़ा है। जो ROB, RUB, LHS, इसमें तकलीफ ये थी कि पहले स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पैसा कौन देगा, कौन बनाएगा, इस तरह की बातें हमेशा होती रहती थी।
तो माननीय रेल मंत्री के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया कि सारे आरओबीज का पूरा खर्चा रेलवे वहन करेगी। और इस स्कीम के तहत डिवीजन में लगभग 70 से 75 आरओबी, आरयूबी, एलएचएस वेरियस स्टेजेस में हैं। कुछ बन रहे हैं, कुछ की प्लानिंग हो चुकी है, कुछ का एस्टिमेट बन रहा है। उसमें से 11 का शिलान्यास हम कर रहे हैं। मगर मुख्य बात यह है कि इसके ऊपर बहुत जोर दिया गया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आरओबी, आरयूबी, एलएचएस जो है वो यात्रियों के लिए एक मुश्किल बनता जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और ट्रेन बढ़ रही है और गेट्स पे काफी भीड़ बढ़ रही है। तो यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है, जनमानस को बड़ी असुविधा हो रही है, क्योंकि उनको गेट पे काफी देर तक वेट करना पड़ता है और जाम लग जाता है। तो ये काम माननीय रेल मंत्री के नेतृत्व में ये बात सब लोग समझ रहे हैं अच्छी तरीके से, और उसके सलूशन के रूप में ये जो शिलान्यास एक कड़ी है। आगे जो कुल संख्या मैं अपने आसनसोल मंडल का बता रहा हूं, कुछ रफ फिगर इस तरह का है। जो 26 फरवरी को जो शिलान्यास रखा जा रहा है, उसका मुख्य मकसद है कि ये बताना कि जो स्टेशंस का परिवर्तन है, क्या हम जैसे विदेशों में जाते हैं या बाहर कहीं बड़े मॉल में जाते हैं या उस तरह की सोच हम भारत में एक स्टेशन पे ला सकते हैं। मेनली सोच ये है। और दूसरी सोच ये है कि स्टेशन सिर्फ यात्रियों जो सफर कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। मुख्य मुद्दा है कि क्या उसको कमर्शियल हब बना सकते हैं। कि नॉर्मली क्या था, जब आप इतिहास को देखें तो एक तरफ शहर होगा और स्टेशन एक होगा, और दूसरी तरफ का जो शहर था वो इतना डेवलप नहीं था। तो अब दोनों साइड के स्टेशंस को जोड़ते हुए डेवलपमेंट की बात कही जा रही है, ताकि स्टेशन एक कमर्शियल हब बने और वहां पे लोग आए न सिर्फ यात्रा करने के लिए, मगर अगर किसी को कुछ खरीदना हो, किसी को कुछ अच्छा समय बिताना हो, तो उसके लिए भी वो आ सकते हैं। मुख्य ये दो विषयों के ऊपर आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। बट चूंकि आपसे काफी दिनों से बातचीत नहीं हुई है, तो इस मौके पे मैं 2-4 बात और कहना चाहूंगा जो 26 के कार्यक्रम के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है। एक जो लास्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, आप लोगों ने काफी मुद्दे उठाए थे, तो मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि आसनसोल से हम लोग अंडरपास में पानी जमने का कार्यक्रम जो था, उसको हम लोग इरेडिकेट करना चाह रहे हैं। लास्ट टाइम 90% सफलता मिली थी, 10% आपके माध्यम से हम लोगों को उजागर होता रहा कि यहाँ पे सफलता नहीं हुई, पानी जम जाता है। मगर इस बरसात से पहले हम पूरी तरह से प्रयत्नशील हैं कि 100% हम पानी जमने इस बार नहीं देंगे। लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग सभी लोगों ने हाईलाइट किया था इस इशू को। दूसरा इशू हाईलाइट किया गया था कि जो रोड सरफेस है हमारे गेट्स पे, वो बहुत टूटे फूटे हैं, बहुत हालत खराब है। तो फरवरी तक करीब 80% रोड्स बिल्कुल ठीक कर दिए जाएंगे और मार्च जाते जाते 100% एलसी गेट्स के रोड ठीक कर दिए जाएंगे। अगर कहीं कोई गलती मिले, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप कृपया उस तरह के जानकारी को हम तक पहुंचाएं। हो सकता है कुछ कमी रह जाए, मगर आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि जो ये टारगेट लिया है आसनसोल मंडल ने, उसको 100% हम लोग पूरा करें। और अंतिम बात जो अपने साइड से मैं कहना चाहूंगा, मुझे 6 महीने हो गए हैं इस मंडल में, और आसनसोल की मंडल की जो रेलवे की टीम है, वो हम लोग को रेलवे बोर्ड से भी पुरस्कृत किया गया, 1 लाख रुपए का अवार्ड दिया गया। मैं खुद लेने गया था माननीय रेल स्टेट मंत्री से। तो जो लोडिंग है, जो हमारा, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो सीमेंट हो, उसमें हम लोग पिछले साल से 15% ऊपर हैं। अब ये आप सोच सकते हैं कि सेम रिसोर्सेस में 15% बढ़ाना कितने मेहनत और अच्छी प्लानिंग का ये फल है। तो ये एक अच्छा काम डिवीजन कर रहा है, जिससे पहले पावर प्लांट्स में आप देखते थे कोयले की कमी रहती थी, आपके द्वारा हाईलाइट होता था कि बिजली अब कम मिलने वाला है।
आज के डेट में कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष है कि जितने पावर प्लांट हम लोग को असाइन किए गए हैं वो कह रहे हैं कि हमको और कोयला मत दीजिए, हम लोग सफिशिएंट कोयला हमारे पास है। নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ হারায় এক সাইকেল আরোহী। ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোল ভগৎ সিং সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনা সম্বন্ধে জানা যায়, এদিন সকালে নিউ টাউনের বাসিন্দা এক বৃদ্ধ ভগৎ সিং মোড়ের সামনে রাস্তা পার হবার সময় হঠাৎই ট্রাকের তলায় পড়ে যায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। घुमा लो। घर कहाँ है? पूरा करके है। दार देखना मेरा भाई। पानी कोई नहीं देगा। ड्राइवर कहाँ गया? तो रंग साइड में था भाई, ये गाड़ी वाला घुसाया अपना। तो मैंने कहाँ का बासिंदा था कुछ पता? ये मालूम नहीं, लेकिन बचेगा उसका। ये हमको लगता है कि दोनों फाइट कर जाएगा। ड्राइवर तो बहुत अच्छा ड्राइवर है। पैर का ऊपर चढ़ा दिया था क्या? वो तो जोक से उतार के डाला। बचेगा लेकिन हमें लगेगा दोनों फाइट चला गया। घटना यह, एक ट्रक आ रही थी उधर से भगत सिंह मोड़ में, और वो ट्रक वाला जो है ये साइकिल चला के बूढ़ा आ रहा था, चाचा जी। ये चाचा जी आ रहे थे साइकिल चला करके, जैसे टर्न लिए, वो टर्न लेने वाला था बाएं तरफ, समझे ना, बस एक्सीडेंट हो गया, उनका पाँव फंस गया। तो क्या अभी हालत क्या है? हालत अभी गंभीर है, उम्मीद है कि वो उनका बचने का कोई चांस नहीं है। तो अभी डॉक्टर लोग क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर लोग बोले हैं हम लोग थोड़ा देर में क्लियर करते हैं। तो अचानक इस टाइप का मैंने ट्रक का अंदर क्या देखा नहीं था? ट्रक ड्राइवर, वो ड्राइवर जो है वो कटिंग चचा कर रहे थे, कटिंग करने में वो ड्राइवर थोड़ा सा गलती किया, जिसके वजह से वो एक्सीडेंट हुए। उनका पाँव जो है चक्का में फंस गया था बाएं तरफ। तो कैसे करके निकाला गया? वो जग ड्राइवर खुद से जग लगाया, ड्राइवर खुद मेहनत किया, जग लगाया। ये है कि ड्राइवर भागा नहीं, वो बहुत हिम्मत से काम लिया, और काम करने के बाद में उनको निकाला गया। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल तक पहुंचाए। अभी वो गंभीर हालत में है, अभी कुछ देर में मालूम हो जाएगा क्या है क्या नहीं, डॉक्टर क्लियर करेंगे। तो आपका नाम? हमारा नाम मोहम्मद अजीज अमरोही। कौन सा जगह में? ये भगत सिंह मोड़ में है, चौराहे में। নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। ইন্ডাস নিউজের সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। राधानगर जीसस एंड मेरी चर्च द्वारा संचालित जीसस एंड मेरी चर्च स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली को एजुकेशन, जहां उच्च शिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों को उच्च ज्ञान प्रदान किया जाता है। वी हैव हाई क्वालिटी कंप्यूटर लैब, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी अवेलेबल हियर। साथ ही ज्ञान के अलावा डांस, स्पोर्ट, गेम की ट्रेनिंग भी दी जाती है। Apart from this, transport facility is also available for commuting. So enroll yourself today for the all-round development of your children. सीजन 2024-25 के लिए नामांकन जारी है। Contact us today. Jesus and Mary Church School, राधानगर नियर काली मंदिर, सुंदरचक। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 6294897015 नंबर पर।
আসানসোল ও শিল্পাঞ্চল বাসীদের কাছে সুখবর নিয়ে এলো হামজা ফ্যাশন। হামজা ফ্যাশন, এখানে আপনি পাবেন মহিলাদের জন্য অত্যাধুনিক সাজ পোশাক, আছে কুর্তি, লেহেঙ্গা, শাড়ি, স্যুট, নকাব ইত্যাদি। আমাদের ঠিকানা আসানসোল জিটি রোড, ইস্টার্ন রেলওয়ে হাই স্কুলের বিপরীতে। তাহলে আর দেরি কেন, এবার পুজোতে আপনারা সবাই চলে আসুন হামজা ফ্যাশনে। ন্যায্য দামে নিয়ে যান আপনার পছন্দ মতো জিনিস। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसुसोर नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। শনিবার আসানসোল স্থিত উর্দু একাডেমি ভবনে ওয়েস্ট বেঙ্গল উর্দু একাডেমির পক্ষ থেকে সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়। এদিন অনুষ্ঠানে শুভ উদ্বোধন করেন রাজ্যের আইন ও শ্রমমন্ত্রী মাননীয় মলয় ঘটক মহাশয়। এছাড়াও এদিন এখানে উপস্থিত ছিলেন আসানসোলের যুগ্ম ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ঘটক, ওয়াসিমুল হক, MMIC গুরদাস চ্যাটার্জি, উর্দু একাডেমির বিভিন্ন সদস্যরা। অনুষ্ঠানটি চলবে আগামী 2 দিন পর্যন্ত। महफूजुल हसन साहब की खिदमत में MLA सोलावली साहब तशरीफ रखते हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। जिला परिषद है, उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। बहुत सारे जैसे वो भी जाहिर करते कोशा इसमें है, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है। हर कोशिश किया कि हर आदमी की दिलचस्पी का बाइस बने ये प्रोग्राम। मैं शुक्रगुजार हूँ। काम ऊंचा नहीं होगा जितना भारत रत्न का होगा। उसी तरह से महबूब अनवर अवार्ड का भी एकेडमी जो उनके नाम का इंतखाब जो हुआ है, इसी सोच के थे कि वो सबसे हर दिल अजीज शख्सियत थे इस इलाके के और वाकई बड़े अदीब थे। हमारे फंक्शन सब कमेटी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी, रुकन राज्यसभा मौजूद हैं, हाजिर हैं, इज्जत और आप तमाम अदब नवाज शख्सियत, अजीज तलबा व तालिबात, सबसे पहले हम बासिंदागान आसनसोल की जानिब से मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूं कि मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के प्रोग्राम कलकत्ता से चलकर आसनसोल तक मुनक्किद करने का जो कोशिश है
इसके लिए मैं उन्हें शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आसनसोल को ये इज्जत बख्शा कि यहाँ पे एकेडमी के साथ में प्रोग्राम मुनक्किद किया। वरना इससे कबल बहुत सारी सरकारें के ज़माने में ये एकेडमी था। जिस तरह से जबीर साहब कह रहे थे कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में जिस तरह के उर्दू एकेडमी के हालात थे उससे कहीं बेहतर और उम्दा हालात हमारे मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी का है। तो इसी तरह नीचे बहुत है। एकेडमी का जो हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जिसके लिए बनाया, ये आप लोग का लिए है। आप इसको यूटिलाइज कीजिए, यहाँ आइए, यहाँ पढ़िए, बढ़िया से आप लोग अपना अगला दिन अपना जिंदगी को बनाइए। इतना ही कहते हुए सबको मेरा तरफ से सलाह। देखिए, जिस जगह में हम लोग इस प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ लाखों से ज्यादा आबादी है जो उर्दू भाषी है, और खास करके 34 साल का एक जमाना गया जो लेफ्ट फ्रंट का जमाना था। उस टाइम में उर्दू इस इलाका में कोई तरक्की का काम होता ही नहीं था। लेकिन 2011 का बाद उर्दू एकेडमी तो बना ही है। रेल पार का सबसे ज्यादा जो तकलीफ था कि रेल पार में 2 ब्रिज था, छोटा छोटा लोहा का ब्रिज। एक ऑटो चलने से दूसरा तरफ से ऑटो भी नहीं घुसता था। हम लोग का चीफ मिनिस्टर का आशीर्वाद से ये दोनों ब्रिज करीब 12-15 करोड़ रुपया देके एक ब्रिज बन गया, दूसरा का काम भी चालू हो गया। उर्दू एकेडमी का आगे एक उर्दू फाउंडेशन हम लोग बनाए थे। उर्दू फाउंडेशन का तरफ से फ्री एम्बुलेंस यहाँ पर चलता है। रेल पर में अगर किसी को हॉस्पिटलाइज करने पड़ता है तो उस एम्बुलेंस फ्री दिया जाता है और हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया जाता है। उर्दू फाउंडेशन में डॉक्टर भी बैठते हैं, फ्री दवाई दिया जाता है। ऐसे तो हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हर हॉस्पिटल को फ्री कर दिया। आसनसोल में 6 तल्ला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना दिया। सब कुछ फ्री है, ट्रीटमेंट सब कुछ फ्री है। स्वास्थ्य साथी का कार्ड भी दिया गया। केवल खास रेल पार में इलाज का जो दरकार था इमीडिएट। নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। শুক্রবার আসানসোল স্থিত এইচএলজি নার্সিং ইনস্টিটিউটে ল্যাম্প লাইটিং এর অনুষ্ঠান করা হয়। এদিন নার্সিং ট্রেনিং এর সমস্ত স্টুডেন্টদের শপথ গ্রহণ করানো হয় এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এদিন এই অনুষ্ঠানে মুখ্য উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান সুনীল গুপ্তা, ডাইরেক্টর অভিষেক গুপ্তা, কাজী নজরুল হেলথ সায়েন্স প্রফেসর সোমনাথ ঘোষ সহ বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদিন প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। Parents of the students and my dear students. First of all, I'd like to welcome you all to this momentous occasion of the 9th planting ceremony. This day marks an important beginning in the incredible journey the noble profession of nursing which you have taken up. Today, as we all witness the kindling of this lamp, it is not just a lamp, it is a flame of compassion, a flame of dedication, and unwavering commitment which will help you in serving humanity. This lamp symbolizes the legacy of Florence Nightingale, known as the lady with the lamp. This legacy basically is an unwavering dedication which Florence Nightingale showed during their members of the press, friends, colleagues, parents, and who are available here. Also to
Dr. Mujibur CMO, CLW, Today we gather to celebrate a significant moment in our journey towards becoming nurses. The tradition of the nursing lamp lighting ceremony symbolizes the passing of knowledge, wisdom and compassion from one generation of nurse to the next. As we prepare to embark on our career in nursing, we light our lamp as a symbol of enlightenment and dedication to the noble profession of nursing. This ceremony marks the beginning of your commitment to providing care, comfort and healing to those in need. The lamp which you hold represents the light of knowledge that will guide us or guide you through the challenges and triumphs you will face as nurses. It reminds us to always seek out opportunity for learning and growth and to approach your work with humility and compassion. As you light the lamp today, it reflects on the values that define nursing: empathy, integrity, and advocacy. Try to remember that trust that our patients place in us and the responsibility we have to honor that trust with the highest standard of care. May the light of lamp shine brightly as we embark on the journey, illuminating the path ahead and inspiring hope in all of you. Thank you. आज क्या प्रोग्राम लेके आप लोग आए हैं? आज हमारा लैम्प लाइटिंग सेरेमनी है अलॉन्ग विथ ओथ टेकिंग। जो हमारे नए बैच इस साल ज्वाइन किए हैं उसकी ओथ टेकिंग लैम्प लाइटिंग सेरेमनी हम लोग ऑर्गेनाइज कराएंगे। कितने छात्राओं को आज? देखिए अभी हमारे अराउंड 25 स्टूडेंट्स का हो रहा है। ये सेकंड बैच है? ये सेकंड बैच है हमारा। सेकंड बैच में कितनी है संख्या उन लोग? अराउंड 25 है। 25 स्टूडेंट्स इस बैच में हमारी है। लोगों को शपथ दिलाई गई कि परिसेवा जो देंगे वो अच्छा से जैसे कि किसी भी मेडिकल प्रोफेशन में जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्सिंग हो गए, उनका करियर शुरू करने से पहले एक ओथ लिया जाता है। बिकॉज नर्सिंग प्रोफेशन या मेडिकल प्रोफेशन ह्यूमन लाइफ के साथ डील करती है। सो इसीलिए ये ओथ लिया जाता है जिसके बेसिस पे अपना जो फ्यूचर करियर शुरू करे उस ओथ के बेसिस पे शुरू करे। जैसे डॉक्टर लोग की हिपोक्रेटिक ओथ होती है वैसे इनका भी ओथ टेकिंग सेरेमनी होता है। न परिचय मैं अभिषेक गुप्ता, डायरेक्टर HLG इंस्टीट्यूट ऑफ নার্স নিউজ, সত্যের পাশে সময়ের সাথে। নিয়ে নিচ্ছে একটি ছোট্ট বিরতি। राधानगर जीसस एंड मेरी चर्च द्वारा संचालित जीसस एंड मेरी चर्च स्कूल affiliated to CBSE न्यू दिल्ली को एजुकेशन, जहां उच्च शिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों को उच्च ज्ञान प्रदान किया जाता है। We have high quality computer lab, laboratory, library available here. साथ ही ज्ञान के अलावा डांस, स्पोर्ट, गेम की ट्रेनिंग भी दी जाती है। Apart from this, transport facility is also available for commuting. So enroll yourself today for the all-round development of your children. सीजन 2024-25 के लिए नामांकन जारी है। Contact us today. Jesus and Mary Church School, राधानगर नियर काली मंदिर, सुंदरचक। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 6294897015 नंबर पर। আসানসোল ও শিল্পাঞ্চল বাসীদের কাছে সুখবর নিয়ে এলো হামজা ফ্যাশন। হামজা ফ্যাশন, এখানে আপনি পাবেন মহিলাদের জন্য অত্যাধুনিক সাজ পোশাক, আছে কুর্তি, লেহেঙ্গা, শাড়ি, স্যুট, নকাব ইত্যাদি। আমাদের ঠিকানা আসানসোল জিটি রোড, ইস্টার্ন রেলওয়ে হাই স্কুলের বিপরীতে। তাহলে আর দেরি কেন, এবার পুজোতে আপনারা সবাই চলে আসুন হামজা ফ্যাশনে। ন্যায্য দামে নিয়ে যান আপনার পছন্দ মতো জিনিস। शादा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में।
গ্রিন আসানসোল ক্লিন আসানসোল আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে, এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प ले, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল ক্লিন আসানসোল। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। শুক্রবার আসানসোল পৌর নিগমে আসেন আসানসোলের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহার স্ত্রী পুনম সিনহা। এদিন সাংসদের স্ত্রী পুনম সিনহা, মহানাগরিক বিধান উপাধ্যায়, ডেপুটি মেয়র ওয়াসিমুল হক, এমএমআইসি গুরুদাস চ্যাটার্জি সহ সমস্ত এমএমআইসিদের সাথে দেখা করেন এবং আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করেন। कांग्रेस को अपना हिसाब से करना पड़ेगा, नहीं तो चला जाएगा। 40 सीट भी लगा दो, इस बार बढ़ जाएगा, नीचे चल जाएगा। আর ওইটা তার সঙ্গে ক্যান্সারে যতগুলো পয়সা দিয়েছে ততগুলো ওইটারও বলে দিন। প্রায় 7 কোটি টাকা আমরা রুট দিয়েছি, ঠিক আছে, আলাদা করে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম যোজনা করেছি। তারপরে প্রায় 10 কোটি টাকা আমরা টেকনিক্যাল বললে হবে না, পুরোটাই করে লিস্ট করে দিয়েছি, আমি পুরোটাই করে দিয়েছি। 5 মাস গেলে ঠিক আছে, বলে পড়া আছে, আমরা করে দিয়েছি। না না একদম দিন এখন বলতে হবে না। मेयर से क्या बातचीत की है? खैर हम तो उनको मिलने आए थे, लेकिन अच्छा लगा कि बातें काम की भी हो गई बहुत कुछ। और अब जब इलेक्शन का टाइम है तो ज़रूरी है कि हम अभी से ही प्रेपरेशंस वगैरह सब करें और किसी भी चीज़ में हम पीछे नहीं रहें। तो क्योंकि सिन्हा साहब ने तो बहुत काम किया है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर आसनसोल के बने हैं एमपी, तो इसलिए काम हमें बहुत अच्छी तरह से करना है और जीत के आना है। यहाँ पे मेयर साहब ने क्या क्या बोला, क्या काम के लिए किस किस जगह पे और भी करना था या करना है? हाँ, करना था और करना है, बहुत कुछ किया है सर ने, सिन्हा साहब ने बहुत कुछ काम किया है यहाँ पर। मुझे लगता है कि किसी भी एमपी ने आसनसोल के लिए इतना नहीं किया होगा जितना उन्होंने किया है। हाँ, लेकिन आगे जब आएंगे, जीत के जब आएंगे तो और काम होगा। और किसी भी चीज़ में पीछे रहने वालों में से वो नहीं है। और मुझे उम्मीद नहीं पक्का है कि वो आगे जाके और भी अच्छा अच्छा काम करेंगे। थैंक यू। ভাবি হ্যাঁ কথা বললেন কি বিষয় নিয়ে? না কি বিষয় নয়, অনেকদিন মানে ভাবির সাথে আমাদের মানে নিজের বাড়ির লোক যেমন ঠিক সেরকম আমাদের রিলেশনশিপ হয়ে গেছে। এবারে ভাবি এখানে এসেছিলেন, রানিং আসানসোলে ঢুকেছিলেন, তো কর্পোরেশনে ঢুকে পড়েছিলেন, তো দেখা করলাম, খুব ভালো লাগলো। এবং যেহেতু দাদা এমপি নির্বাচন আবার দাঁড়িয়েছেন, তো ভোটের নিয়েও কথাবার্তা হলো এবং আমরা যে সব সময় আছি এবং সাথে থাকবো। দাদাকে যে কোনো উপায়ে জেতাতে হবে আমাদেরকে, এবং এলাকায় যেভাবে উন্নয়ন করেছে এই 1.5 বছর 15 বছরে প্রচুর টাকার কাজ করেছেন এবং এত ভালো মনের মানুষ একজন, যে যেই গেছে ওনার কাছে উনি কিন্তু কথা বলেছেন, তার কাজ করার চেষ্টা করেছেন। এবং মানে প্রথমত মানুষ ভেবেছিল যে শত্রুঘ্ন সিনহা যে জিতলে পরে হয়তো এলাকায় ঢুকবেন না,
কিন্তু এখন মানুষের মনটা বুঝে গেছে মন, তারা বুঝতে পেরেছে যে প্রতি মাসে প্রায় 15 দিন 2বার থেকে 3বার আসানসোলে এসছেন, বিভিন্ন এলাকায় গেছে, প্রোগ্রামে অনুষ্ঠানে গেছেন। সে যে কোনো পরব হোক, যে কোনো উৎসব হোক, যে কোনো অনুষ্ঠান হোক, উনি এসছেন, সবার সাথে দেখা করেছেন। তাই আমি আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে আসানসোলবাসীর কাছে অনুরোধ করব, এত সুন্দর একজন মানুষকে পেয়েছি, যে মানে আপনারা আশীর্বাদ দিন, আমরা সাথে রয়েছি, আমরা সবসময় সাথে আছি আপনাদের। দাদাকে জেতান এবং আসানসোলের আগামী দিনে যে উন্নয়নগুলো দাঁড়িয়ে আছে সেগুলো যাতে করাতে পারি আমরা। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। আজকের ইন্ডাস্ট্রি নিউজ এই পর্যন্তই। আবার দেখা হবে ঠিক একই সময়ে একই চ্যানেলে। নমস্কার।